Hello, dear students. Let's continue with the endocrine system part 2, and in today's video we will be discussing about two important glands of our body, that is thyroid gland and adrenal gland. Okay, so starting with the thyroid gland is located in the neck region. It is located in our neck region. You can see here this pink colored structure, H-shaped structure, is our thyroid gland. So it is located in the neck region. So in the respiratory system, you have learned about the voice box called as larynx. So basically that thyroid gland is located below the larynx, or we can say below our voice box in front of the trachea. This is our trachea or windpipe. तो windpipe के front में means windpipe के ऊपर आगे की तरफ that H-shaped structure is the thyroid gland. If you will see the enlarged view of this thyroid gland, then you can see that it is having two lateral lobes which are connected to each other by a narrow muscular tissue mass called as isthmus. ओके सो ये क्या है, एक एच शेप का स्ट्रक्चर है जिसमें दो लोब्स होती हैं ऑन टू द आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया. दिस इज अवर विंड पाइप और कॉल्ड एज ट्रैकिया. तो ट्रैकिया के दोनों साइड में दो लोब्स होती है थायराइड ग्लैंड की, जो कि आपस में कनेक्टेड होती है मास ऑफ टिश्यू कॉल्ड एज isthmus से. सो व्हाट इज द लोकेशन? बिलो द लैरिंग्स इन फ्रंट ऑफ ट्रैकिया द थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट. Okay, now the important hormones secreted by this thyroid gland are thyroxine and calcitonin. Most important is thyroxine. Calcitonin is not that much important and it is not included in your syllabus. So we will not discuss about calcitonin. We will discuss about thyroxine hormone. So thyroxine is an hormone which is secreted by this large thyroid gland. And this thyroxine hormone will control the metabolism of our body. ओके हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है. मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? जो इंटरनल एक्टिविटीज़ चल रही है हमारे अंदर, रेस्पिरेशन हो रहा है और ग्लूकोज को तोड़ के जो एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा रहा है, डाइजेशन हो रहा है. सो उसका क्या लेवल रहना चाहिए, कितना प्रोडक्शन होना चाहिए एनर्जी का, वो सारा कंट्रोल कौन करता है? इट इज़ कंट्रोल्ड बाय दिस थायरॉक्सिन हार्मोन. नाउ कम टू द सिक्रीशन. अगर ये अंडर सिक्रीशन है, यानी अगर कम सिक्रीट हो रहा है नॉर्मल लेवल से, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपो का मतलब होता है लेस सिक्रीशन, एंड इफ इट इज ओवर सिक्रीशन देन इट इज कॉल्ड एज हाइपरथायरॉयडिज्म, एंड बोथ विल कॉज सम डिजीज. ओके, वी जस्ट नीड एन एजुकेट और नॉर्मल लेवल ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन अवर बॉडी. अंडर सिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन, और वी कैन से ओवर सिक्रीशन, they both will cause some diseases in our body. Okay, and the calcitonin is that second hormone which will control the calcium level in our body. That is not much important because it is not in our syllabus. So let's start with the thyroxine hormone. Before starting with the thyroxine hormone, let's discuss about parathyroid gland also, because parathyroid gland is also present just near the thyroid gland. Okay, if we will see the thyroid gland, so you can see here that this is the H-shaped thyroid gland, and in the back side or posterior part or posterior side of the thyroid gland, you can see these four small lobes or four small structures are there which are embedded in the thyroid gland, and these are the parathyroid gland. In large view में आपको clearly दिखाई दे रहा. Suppose these are the two lobes of the thyroid gland. So in the thyroid gland lobe, onto the posterior sides, 4 number of parathyroid glands are also present which will secrete parath hormone. और ये parath hormone क्या करते हैं? बॉडी के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं. अगेन दैट parath hormone or parathyroid gland is also not that much important. Only this much you need to learn about the parathyroid gland. Now starting with the main hormone secreted by the thyroid gland, which is the thyroxine hormone. First of all, let's discuss the function of thyroxine hormone. Okay, then we will discuss कि अगर ये कम सिक्रीट होता है तो क्या डिजीजेस हो सकती है, और अगर ये ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है तो क्या डिजीजेस हो सकती है. Starting with the function of thyroxine hormone, first of all, it will regulate the basal metabolism. Okay, basal metabolism का मतलब क्या है कि ये हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है उसको कंट्रोल करता है, कि हमारी बॉडी के अंदर कितना फूड है वो ऑक्सीडाइज होना
चाहिए और कितनी एनर्जी का प्रोडक्शन होना चाहिए, ये सब कंट्रोल किया जाता है बाय दिस थायरोक्सिन हार्मोन। सो मेटाबॉलिक रेट जो होती है बॉडी की वो कौन कंट्रोल करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। एंड इन एडिशन टू दैट इट विल ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। क्लियर? सो अब मेटाबॉलिक रेट के ऊपर ही हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट डिपेंडेंट होती है, बिकॉज इफ वी हैव अ मेटाबॉलिक हाई मेटाबॉलिक रेट, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन एक अच्छे लेवल पे हो रहा है, सो उससे बॉडी की ग्रोथ भी राइट लेवल पे होती है। सो इट विल ऑल्सो रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, एंड बेसिकली इट विल रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द अर्ली एजेस ऑफ द लाइफ। ओके, सो बच्चों के अंदर इट विल रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स एंड मेंटल डेवलपमेंट। ऑसिफिकेशन का मतलब है कि बोन्स कितनी स्ट्रांग बननी चाहिए, उनका जो मैट्रिक्स है वो कैसा बनेगा, दैट विल बी ऑल्सो डिसाइडेड बाय दैट थायरोक्सिन हार्मोन। एंड इवन द मेंटल डेवलपमेंट विल ऑल्सो बी डिपेंडेंट, बिकॉज बेसिकली एनर्जी का प्रोडक्शन कितना होना चाहिए दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन हार्मोन। सो इनडायरेक्ट वे में इट विल ऑल्सो कंट्रोल दैट मेंटल डेवलपमेंट। ओके, एंड इट विल ऑल्सो रेगुलेट द एक्टिविटी of the nervous system. So these are some of the important functions of the thyroxine hormone. Now under secretion को हमने क्या बोला? Hyposecretion, and over secretion is also called as hypersecretion. Both are resulting in some abnormal diseases or growth of the body. So let's discuss कि under secretion से क्या diseases हो सकती है और over secretion से क्या diseases हो सकती है। Under secretion of the thyroxine hormone will leads to goiter disease, that is called as simple goiter disease, and even cretinism and myxoedema. Okay, so first of all starting with the simple goiter. goiter के अंदर क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, and it can be easily visible in the neck region. You can see in this picture that it is an enlargement of neck region due to that simple goiter region. Okay, सो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन सच कंडीशन थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटीज़ के अंदर सिक्रीट नहीं होता है, बिकॉज जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके बनने के अंदर आयोडीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो इन एनी केस अगर डाइट के अंदर आयोडीन की कमी होती है, सो उस केस में क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर नहीं बनेगा, एंड देन इट मे लीड्स टू दैट स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, सो ये जो गॉइटर की डिजीज़ है बहुत ही कॉमन है, और हिली रीजन के अंदर जहाँ पे आयोडीन की डेफिशिएंसी रहती है जनरली, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फूड क्रॉप्स है उसमें आयोडीन इतना रहता नहीं है, तो उन लोगों को बहुत नॉर्मली आप देख सकते हैं ऐसी गॉइटर की प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट डिजीज इज क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्या होता है? दैट विल डेवलप इन अर्ली एज। अगर ये जनरली बच्चों में दिखाई देती है। ओके, अगर किसी बच्चे के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है, okay, maybe again the reason is that not a proper diet or any other reason, so उस केस के अंदर क्या होगा? या फिर ये भी हो सकता है कि उसका जो थायराइड ग्लैंड है वो डेवलप ही नहीं हुआ है प्रॉपरली, डिफेक्टिव हो गया है या उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। देन व्हाट विल हैपन इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन? नाउ अ पर्सन और दैट चिल्ड्रन और बेबी विल सफर विद द क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म के अंदर क्या होगा? उसकी ग्रोथ रुक जाती है, उसकी जो फिंगर्स है वो काफ़ी छोटी छोटी और मोटी मोटी हो जाएगी, बोन्स और जो टीथ है वो इतने अच्छे फॉर्म नहीं होंगे, डिफॉर्म्ड होंगे, इवन जो अब्डोमेन रीजन और बेली है वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होगा। ओके, स्किन बहुत ही रफ होगी, बाल बहुत कम होंगे सिर में, स्कैंटी हेयर होंगे, मीन्स बहुत ही कम बाल होंगे, एंड इवन इट मे ऑल्सो लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दैट चाइल्ड विद क्रेटिनिज्म, एंड द मेन रीजन फॉर दैट क्रेटिनिज्म इज मे बी there is a defective development of the thyroid gland or degeneration of thyroid gland, or maybe due to insufficient diet. ओके, सो दैट इज अ क्रेटिनिज्म जो कि बच्चों में देखी जाती है। नेक्स्ट डिजीज विच मे बी कॉज्ड अगेन ड्यू टू द हाइपोथायरॉयडिज्म इन अडल्ट्स, दैट इज मिक्सोइडीमा। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पर्सन है उसके जो फेस के जो टिश्यूज है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं और बहुत ही पफी लगने लगते हैं। यू कैन सी द पफी आईज इन दैट पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम मिक्सोडीमा। ओके, सो इस कंडीशन में भी क्या होता है? जो हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन है, यानी थायरोक्सिन हार्मोन प्रॉपर सिक्रीट
सिक्रीट नहीं हो रहा है। अनादर इसके अंदर और सिम्टम्स क्या है कि ऐसे पर्सन की हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, एंड दे हैव अ हाई सेंसिटिविटी टू एट कोल्ड, ड्राई हेयर और ड्राई स्किन हो जाती है, और जो मसल्स है वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ अ person who will be suffering with the myxoedema. So these three are the diseases caused due to the under secretion, or we can say hypothyroidism. Now come to the hyperthyroidism. You all have learned about hyperthyroidism also, कि आपने सुना होगा कि किसी किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है, किसी को हाइपर की होती है। हाइपर के अंदर क्या होता है, थायरॉक्सिन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने लग जाता है। उसको भी हम क्या बोलेंगे, गॉइटर ही बोलेंगे, बट इट इज़ नॉट अ सिंपल गॉइटर, इट इज़ कॉल्ड एज एक्सोप्थैलेमिक गॉइटर। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अब इसके जो सिम्टम्स होंगे वो थोड़े ऑपोजिट होंगे, बिकॉज इसमें हार्ट बीट अब बहुत तेज हो जाएगी, मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जो आइज़ है वो बाहर आएगी, और जो ब्रीदिंग रेट है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट हार्मोन, thyroxine hormone. Calcitonin is not there in your syllabus, but it is for the regulation of calcium and phosphate level in the body. Okay, and it will facilitate that absorption of calcium by the bones. Okay, so now come to the next gland, which is the adrenal gland. You have already learned about that adrenal gland in the excretory system. Excretory system में kidneys के ऊपर जो gland है that is called as adrenal gland, और आपने पढ़ा है कि adrenal gland एक हार्मोन सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन, जो कि सोडियम और पोटेशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है यूरिन के अंदर, उसको बैलेंस करता है। इफ यू रिमेंबर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट हार्मोन एंड ऑफ दैट ग्लैंड। ओके, सो हमारी बॉडी के अंदर कितनी किडनीज है, 2 किडनीज है, एंड अबाउ ईच ऑफ द किडनी वी आर हैविंग दैट ग्लैंड कॉल्ड एज एड्रीनल ग्लैंड। ओके, सो वी आर हैविंग 2 एड्रीनल ग्लैंड्स, और ये किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इसको सुप्रारेनल ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। ओके, एंड इफ यू विल डू द ट्रांसफर सेक्शन, दिस इज द एनलार्ज्ड व्यू ऑफ दिस एड्रीनल ग्लैंड। ओके, सो इफ यू विल डू द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ दिस एड्रीनल ग्लैंड, we will again see 2 different parts. Outer part is called as adrenal cortex and the inner part is called as medulla. Okay, just like the longitudinal section of kidney also, if you remember, तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था cortex and medulla, and here also it is cortex and medulla. but जो दोनों regions है वो अलग अलग हार्मोन सिक्रीट करते हैं। so you need to learn कि cortex कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है और medulla क्या सिक्रीट करता है, और दोनों के हार्मोन्स जो हैं वो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। so basically the adrenal cortex will secrete the hormone called as glucocorticoids and mineralocorticoids. Okay, ये glucocorticoids भी further divided है, अलग अलग types के होते हैं, like cortisols, corticosterone, cortisons, but in one general category we can say that from the adrenal cortex glucocorticoids and mineralocorticoids will be secreted, and from the medulla region adrenaline and noradrenaline hormones will be secreted. Again, these hormones, you are familiar with the names of these hormones because they are called as स्ट्रेस हार्मोन, जिनके बारे में हमने पढ़ा है। ओके, व्हेन अ पर्सन सिंपैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम विल एक्टिवेट, दैट टाइम एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन हार्मोन जो है वो किडनी के मेड्यूला से सिक्रीट होते हैं, और वो सिंपैथेटिक पाथवे को हेल्प करते हैं सारी सिचुएशन को कोप अप करने में। सो दे आर कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन। वी विल डिस्कस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड mineralocorticoids आते हैं। Starting with the glucocorticoids, again they are a group of hormones जिसके अंदर cortisols, corticosterones और cortisons अलग अलग तरह के hormones होते हैं। Okay, the major hormone is cortisol. सो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, दे विल रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन अवर बॉडी। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो हम खाना खाते हैं उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन्स का, फैट्स का, ब्लड का जो शुगर है उसका जो लेवल है उसको रेगुलेट करते हैं। एंड वी कैन से दैट दे विल बेसिकली हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ आवर फूड मटेरियल। जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो ब्लड में आ जाते हैं, फिर उनको जो उनका जो मेटाबॉलिज्म है उसके रेगुलेशन में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हेल्प करते हैं. ओके, एंड इवन दे विल ऑल्सो हेल्प इन अडेप्टेशन टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. ओके, समटाइम इफ देर इज़ वेरी हीट, वेरी कोल्ड, कोई इन्फेक्शन या कोई बर्न हो जाता है, उस कंडीशन में भी दे विल ऑल्सो हेल्प इन कोप अप दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. ओके, और जो कॉर्टिकल हॉर्मोन्स होते हैं, समटाइम दे मे ऑल्सो एक्ट एज अ सेक्स हॉर्मोन. इफ यू रिमेंबर, देन वी हैव डिस्कस कि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन, दीज आर द sex hormones secreted by the ovaries in female. Okay, and they will control the secondary sexual characteristic features in the females. Okay, and testosterone is the male sex hormone which is secreted by the testes, and they will control the secondary sexual characteristic features in the males. Okay, but sometime these glucocorticoids will also act as a sex hormone, and they will also help in the sexual maturity in children. ओके, सो सेक्सुअल मेच्योरिटी जो आती है टीन एज के अंदर, ओके, जो फीचर्स चेंज होते हैं उनके अंदर भी ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हेल्प करते हैं. Second category is mineralocorticoids. Before starting mineralocorticoids, one more important topic is hypo and hyper secretion of glucocorticoids. अगर ये कम secrete होता है तो पर्सन के अंदर जो डिजीज हो जाती है, that disease is called as Addison's disease. Okay, इसके अंदर mental lethargy हो जाती है, nausea, vomiting, जी घबराता है, vomit हो सकती है, और पर्सन की जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, वेट लॉस हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कंट्रोल करते हैं, और वो अब कंट्रोल क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा. ओके, सो फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, इन सब का जो मेटाबॉलिज्म है वो नहीं हो पाएगा, तो उसमें वेट लॉस हो जाता है. अगर ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होता है, देन इट विल लीड्स टू डिजीज कॉल्ड एज कुशिंग्स हार्मोन. कुशिंग्स हार्मोन में क्या होगा कि अब मेटाबॉलिज्म की जो रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी. ओके, एंड दैट कंडीशन इज रिलेटेड टू हाई ब्लड शुगर लेवल, एंड इवन इट विल लीड्स टू ओबेसिटी, ऑस्टोपोरोसिस, वीकनेस, एंड मेनी अदर फीचर्स. सो यू नीड टू लर्न only these 2 points, that hyposecretion of glucocorticoids will result in Addison's disease, and hypersecretion of that adrenal cortex hormones will leads to the Cushing syndrome. Clear? Now the second category of the hormones secreted by adrenal cortex are called as mineralocorticoids, जिसका सेकंड नाम है एल्डोस्टेरॉन. एल्डोस्टेरॉन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर. यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने का काम किसका होता है, एडीएच का और एल्डोस्टेरॉन को. एडीएच वाटर के बैलेंस को लेवल को मेंटेन करता है, और जो दूसरा हार्मोन है एल्डोस्टेरॉन, जो कि किडनीज के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके मेडुला उसके कॉर्टेक्स रीजन से जो सिक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड एज एल्डोस्टेरॉन. एंड नाउ दिस विल रेगुलेट द सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी बाय मेंटेनिंग द सोडियम एंड पोटेशियम रेशियो इन दैट यूरिन इन द यूरिनरी ट्यूब्यूल. क्लियर है? Okay, so these are the two main hormones secreted by the adrenal cortex. Now come to the medulla region. जो inner region है वो दो main hormones secrete करता है, adrenaline and noradrenaline. Okay, इनका जो second नाम है वो क्या है, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. क्लियर? सो एड्रीनलिन हार्मोन जो है वो बेसिकली 80% तक उसका जो टोटल सिक्रीशन है उसका परसेंटेज है. सबसे ज़्यादा जो मेडुला रीजन है वो क्या सिक्रीट करता है, एड्रीनलिन हार्मोन सिक्रीट करता है. ये दोनों हार्मोन्स जो है वो साथ में हेल्प करके बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड के लिए प्रिपेयर करते हैं. इसीलिए हम एड्रीनलिन हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन और स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं. कैसे हेल्प करते हैं, हमने सिंपैथेटिक पाथवे में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया है कि लाइक अगर कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा दिया जाएगा, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, और जो ब्लड है वो मसल्स को ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि मसल्स एनर्जी का प्रोडक्शन ज़्यादा करें. ओके, एंड विद दैट एनर्जी प्रोडक्शन नाउ अ पर्सन विल बी रेडी टू फाइट दैट पर्टिकुलर कंडीशन. ओके, और क्या होता है, जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं हमारे, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन ऑर्गन्स है, वहां पे अभी क्या कर दिया जाता है, जो ब्लड की सप्लाई है उसको कम कर दिया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में डाइजेशन और एक्सक्रीशन और ये प्रोसेस ना होए. अभी क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन होना चाहिए मसल्स में, जिससे कि मसल्स स्ट्रांग बने और रन कर पाए उस पर्टिकुलर सिचुएशन से. ओके, सो जब हम खेलते हैं, हम दौड़ते हैं, उस टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर एड्रीनलिन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. ओके, नाउ लेट अस सी कि कैसे ये एड्रीनलिन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट करती है. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि अभी क्या होता है
कि जब हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं. सो इट विल इंक्रीज द ब्रीदिंग नंबर. ओके, जो हमारी ब्रीद है वो फास्टर और डीपर हो जाती है व्हेन वी आर इन अ स्ट्रेस कंडीशन. ओके, हमारी मसल्स जो है वो शिवर करने लग जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमीडिएटली एक फास्ट एक्शन प्रोवाइड करती है और बहुत ज़्यादा एनर्जी का प्रोडक्शन करती है. हार्ट की जो बीट है दैट विल इंक्रीज. वाई? बिकॉज जब हार्ट बीट फास्ट करेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होगा और ज़्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई होगी टू द मसल्स, जो कि अब क्या कर रही है, एनर्जी का प्रोडक्शन कर रही है. लीवर क्या करेगा, अपने अंदर जो ग्लाइकोजन स्टोर कर रखा है उसको अब ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बाहर निकालेगा, जिससे कि एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज की कमी ना आए. ओके, और जो स्किन है उसकी जो आर्टरियल्स है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो ब्लड है वो स्किन को कम सप्लाई होगा और मसल्स को सप्लाई ज़्यादा होगा. इसीलिए जो स्किन का कलर है वो भी थोड़ा सा पेल येलो टाइप में हो जाता है व्हेन वी आर इन अ स्ट्रेस कंडीशन. ओके, और इवन जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे, उन सब में क्या होता है, अब ब्लड की सप्लाई को कम कर दिया जाता है. ओके, क्योंकि हमारी बॉडी क्या चाहती है, अभी नए फूड को डाइजेस्ट करके एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है. अभी हमारे पास जो स्टोर एनर्जी है लीवर के अंदर उसको बाहर निकाल के यूटिलाइज करो, बिकॉज वी आर इन अ इमरजेंसी सिचुएशन. सो अभी डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, तभी हमारे मुंह में जो सलाइवा का सिक्रीशन होता है वो बहुत कम हो जाता है. सो वी विल फील अ ड्राई माउथ. हमें क्या होगा, मुंह बड़ा सूखा सूखा सा लगता है, बिकॉज सलाइवा को जो सिक्रीशन है वो भी उस टाइम में बहुत कम हो जाता है. सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स which you can feel in an emergency situation, and now you can correlate that how the adrenaline and noradrenaline hormones are doing all these things. Clear hai? So this is all about your main two glands, thyroid and adrenal glands, and next glands we will discuss in the third part of the video. Until, just revise both the portion from your book also. Thank you so much.